हेलो एंड वेलकम टू पीआईबी समाचार। आज पीआईबी समाचार में हम कुछ अलग करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम पीआईबी न्यूज़ वी आर गोइंग टू कवर वन चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी। ओके, सो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट उसका नाम है, और वहाँ से क्लाइमेट एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। तो ये बोरिंग भी हो जाता है, बड़ा चैप्टर है करने के लिए। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू कवर दिस लाइन बाय लाइन एंड ताकि रिविजन करते वक्त हम 2x की स्पीड पे हमारी मेहनत कम कर सकें। सो लेट्स बिगिन नाउ, राइट। So yeah, this is the chapter number 4, climate. Okay, yeah. We drink more water during summers. Your uniform during the summer is different from the winters. Why do you wear lighter clothes during summers and heavy woolen clothes during winters in North India? ऐसे छोटे मोटे questions हैं. Okay, try to answer them. In southern India, woolen clothes are not required. Right? In northeastern states, winters are mild except in the hills. ये देखिए, winters are mild except in the hills. There are variations in weather conditions during different seasons. These changes occur due to the changes in the elements of weather. And elements of weather कौन से हैं? Temperature, pressure, wind direction and velocity, humidity and precipitation, etc. Right? इसके बाद देखिए, weather is the momentary state of the atmosphere, while climate refers to the average of the weather conditions over a longer period of time. तो weather क्या होता है? Momentary state होता है atmosphere, right? But climate क्या हो जाता है? एक longer period हो जाता है, right? Weather changes quickly, maybe within a day or week, but climate changes imperceptibly, right? Climate changes imperceptibly and may be noted after 50 years or even more. तो इसरो का NRSC है, वहाँ पे क्लाइमेट का डेटा बहुत अच्छे से मिलता है. You can check that out. All right. You have already studied about the monsoon in your earlier classes. You are also aware of the meaning of the word monsoon. Okay, monsoon connotes the climate associated with seasonal reversal in the direction of the winds. Seasonal reversal in the direction of the winds. India has hot monsoonal climate, which is the prevalent climate in South and Southeast Asia. Okay, next यहाँ पे है unity and diversity in the monsoon climate. Okay, the monsoon regime emphasizes the unity of India with the rest of the Southeast Asian region. तो ये आंसर राइटिंग में आप बहुत बढ़िया से ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. Okay, this weave of broad unity of the monsoon type of climate should not, however, lead one to ignore its regional variations, which differentiate the weather and climate of different regions of India. For example, the climate of Kerala and Tamil Nadu in the south are so different from that of Uttar Pradesh and Bihar in the north. तो regional diversity भी है, although हमारी unity है with Southeast Asia और East Asia के साथ, but there are regional differences, right? And yet all of these have a monsoon type of climate. All of these have monsoon type of climate. Diversity भी है, पर broader term में monsoon type of climate है. Right? The climate of India has many regional variations expressed in the pattern of winds, temperature and rainfall, rhythm of the seasons and degree of wetness or dryness. है ना? Patterns of wind express कैसे करते हैं? Patterns of wind, temperature and rainfall, rhythm of seasons and the degree of wetness or dryness. These regional diversities may be described as subtypes of monsoon climate. Okay, let us take a closer look at these regional variations in temperature, winds and rainfall. All right, देखो. While in the summer the mercury occasionally touches 55 degrees Celsius in the western Rajasthan, it drops down to as low as -45 degrees in winter around Leh. है ना? Churu in Rajasthan may record a temperature of 50 degrees Celsius or more on a June day, while the mercury hardly touches 19 degrees Celsius in Tawang. तवांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, है ना, on the same day.
ओके, सो दीज आर एक्सट्रीमिटीज. देखिए क्लाइमेट के एक्सट्रीमिटीज दे रहे हैं यहाँ पे. ऑन ए डिसम्बर नाइट, यानी कि विंटर सीजन है ना, टेम्परेचर इन द्रास, दैट इज लद्दाख, द्रास इन लद्दाख may drop down to -45 degrees Celsius, while Thiruvananthapuram or Chennai on the same night records 20 to 22 डिग्री सेल्सियस. क्यों है ये? क्योंकि मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है, सी का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, है ना. These examples confirm that there are seasonal variations in temperature from place to place, है ना, seasonal variations है, and from region to region in India. Not only this, if we take only a single place and record the temperature for just one day, variations are no less striking. In Kerala and in the Andaman Islands, the difference between day and night temperatures may be hardly 7 or 8 degree Celsius. इतना ही difference हो जाता है. Okay. हमने वर्ल्ड क्लाइमेट में भी हम जब आइसोथर्म्स वगैरह पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि साइबेरिया में कैसे होता है, सीजनल वेरिएशंस एकदम एक्सट्रीम होते हैं, ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन आता है. बट यहाँ पे देखिए केरला एंड अंडमान, ड्यू टू मैरीटाइम इफेक्ट, यहाँ पे डे नाइट या फिर एनुअल भी जो वेरिएशन होता है वो ऑलमोस्ट बहुत निग्लिजिबल ही है, 7 to 8 डिग्री सेल्सियस ही है यहाँ पे. But in the Thar desert, if the day temperature is around 50 degrees Celsius, Thar में, at night it may drop down considerably up to 15 to 20 degree Celsius. देखो almost 30 to 35 degree Celsius का difference है in a day, right? So that is the temperature range given. Okay, now let us see the regional variations in precipitation. Let's go with the precipitation. While snowfall occurs in the Himalayas, it only rains over the rest of the country. Okay, similarly variations are noticeable not only in the type of precipitation but also in its amount, है ना. While Cherrapunji and Mawsynram in the Khasi hills of Himalaya receive rainfall over 1080 centimeter in a year, Jaisalmer in Rajasthan rarely gets more than 9 centimeter of rainfall during the same period. So this is also high range. Okay, Tura, situated in the Garo hills of Meghalaya, may receive an amount of rainfall in a single day which is equal to 10 years of rainfall at Jaisalmer. देखो कभी कभार क्या पता ऑप्शन में ये पूछ भी ले, है ना. तो लुक एट द डिफरेंस, राइट. इतना रेनफॉल यहाँ पे आता है in a single day which is equal to 10 years of rainfall at Jaisalmer. Amazing, right? While the annual precipitation is less than 10 centimeters in the northwest Himalayas and the western desert, it exceeds 400 centimeters in Meghalaya. So these are ये सारे examples किसके हैं, you know, the diversity, यूनिटी के एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं. दिस इज अबाउट द डाइवर्सिटी इन द रेनफॉल एंड टेम्परेचर पैटर्न्स. ओके, नेक्स्ट देखिए द गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन्स of Odisha are hit by strong rain bearing storms almost every third or fifth day in July, right, and August, while the Coromandel coast कहाँ है, entire हमारा तमिलनाडु, राइट, 1000 किलोमीटर टू द साउथ, goes generally dry during these months. जुलाई एंड अगस्त में कोरोमंडल कोस्ट क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है. मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री गेट रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सेप्टेम्बर, बट ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इट रेन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन. बताइए क्यों? क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं रिट्रीटिंग मानसून होता है या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, तब तमिलनाडु को जाके रेन मिलती है, फिर कोरोमंडल कोस्ट को रेन मिलती है. इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस एंड वेरिएशंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इन मानसूनल is monsoonal in rhythm and character. Okay, next देखिए factors determining the climate of India. Let's see. India's climate is controlled by a number of factors which can be broadly divided into two groups: factors related to location and relief, and factors related to air pressure and winds. Okay, so let's see the first one, factors related to location and relief. तो first factor यहाँ पे कौन सा है, latitude. Okay, you already know the latitudinal and longitudinal extent of the land of India. Yes, comment में लिखिए क्या है इसका extent. You also know that the Tropic of Cancer passes through the central part of the India in east-west direction. Thus, northern part of the India lies in the subtropical
and temperate zone. Exactly, right? Subtropical and temperate zone, and the part lying south of the tropic of Cancer falls in the ट्रॉपिकल जोन. ये हमें पता है, छोटी क्लास की एनसीईआरटीज में ये कवर है. द ट्रॉपिकल जोन बीइंग नियरर टू द इक्वेटर एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर विद स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंज. एरिया नॉर्थ of the Tropic of Cancer being away from the equator experiences extreme climate with high daily and annual range of temperature. यही है उसमें. नेक्स्ट फैक्टर देखिए, द हिमालयन माउंटेन्स. ये क्या करते हैं? द लॉफ्टी हिमालयाज इन द नॉर्थ अलॉन्ग विथ इट्स एक्सटेंशंस एक्ट एज एन इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड, है ना? द एक्ट एज इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड. The towering mountain chain provides an invincible shield to protect the subcontinent from the cold northern winds, है ना? These cold and chilly winds originate near the Arctic Circle and blow across Central and Eastern Asia, है ना? Blow across Central and Eastern Asia. The Himalayas also trap the monsoon winds, forcing them to shed their moisture within the subcontinent. So this becomes important, right? तो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द कोल्ड. साइबेरियन जो कोल्ड विंड्स आते हैं वहाँ से भी प्रोटेक्शन होता है. एंड दे ऑल्सो ट्रैप द मानसून विंड्स. वहीं पे क्लाउड फॉर्मेशन होके वहीं पे हमें मॉइस्चर या फिर प्रेसिपिटेशन मिल जाता है, राइट? नेक्स्ट फैक्टर देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर. Okay, this also becomes important. India is flanked by the Indian Ocean on the three sides in the south and girdled by a high and continuous mountain wall in the north. तो ये हमारी फिजियोग्राफी है, राइट? As compared to the landmass, water heats up and cools down slowly. क्यों? What is the reason? हमने पहले भी दूसरे एनसीईआरटीज में पढ़ा है, क्योंकि specific heat of water is higher than land, right? So water gets heated up very slowly and cools also very slowly, right? So this differential heating of land and sea creates different air pressure zones in different seasons in and around the Indian subcontinent. Difference in air pressure causes reversal. देखिए, difference in air pressure causes reversal in the direction of monsoon winds, है ना? तो कभी कभार लो प्रेशर है, कभी कभार हाई प्रेशर बन जाता है एक एरिया पे, तो उससे क्या हो जाता है? रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मानसून हो जाता है. फर्स्ट मानसून ऐसे साउथ वेस्ट से आती है, बाद में मानसून नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, हम देखेंगे आगे. फिर आता है नेक्स्ट फैक्टर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी, राइट? डिस्टेंस फ्रॉम द सी विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत लॉन्ग है, राइट? लार्ज कोस्टल एरियाज हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट. यस, बिकॉज ऑलमोस्ट कोस्ट पे क्या होता है? सिमिलर ही क्लाइमेट होता है. एरियाज इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया आर फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, राइट? वहाँ पे क्या होता है? कॉन्टिनेंटल इफेक्ट आ जाता है इंटीरियर पार्ट्स में. सच एरियाज हैव extremes of climate, right? Because of continentality. That is why the people in Mumbai and Konkan coast have hardly any idea of extremes of temperature and seasonal rhythm of weather, है ना? तो कोस्टल एरियाज पे मॉडरेटिंग ही होता है. ऑन द अदर हैंड, द सीजनल कॉन्ट्रास्ट इन वेदर एट प्लेसेस इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री सच एज दिल्ली, कानपुर एंड अमृतसर अफेक्ट द एंटायर स्पीयर ऑफ लाइफ. तो जैसे कि डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम सी है, अगर आप यू आर नियर द कोस्ट तो आपको मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है, ऑलमोस्ट सेम क्लाइमेट है. इफ़ यू आर इन द इंटीरियर्स आपके पास टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स हैं, राइट? नेक्स्ट आता है एल्टीट्यूड. देखिए एल्टीट्यूड, हाउ डज दैट इफेक्ट? टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट. ये हमने एटमॉस्फेयर के चैप्टर में भी पढ़ा है. टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट ड्यू टू थिन एयर. प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर दैन द प्लेसेस ऑन द प्लेन्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड. देखो ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है. यूपीएससी कभी कभार ऐसी चीज़ें पूछ लेता है, सेम लैटिट्यूड पे जो प्लेसेस हैं उनके बारे में कुछ भी पूछता है, ठीक है? तो आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा इज 16 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज इट इज़ ओनली 4 डिग्री सेल्सियस इन दार्जिलिंग, बिकॉज आगरा कम्स ऑन द प्लेन्स, राइट? तो ऑलमोस्ट इक्विटेबल टेम्परेचर होता है. बट दार्जिलिंग कहाँ आता है? हिल्स पे होता है, हिल स्टेशंस है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली थिनिंग ऑफ एयर है एंड टेम्परेचर कम है वहाँ पे. नेक्स्ट फैक्टर देखिए, रिलीफ. ओके,
relief. The physiography or relief of India also affects the temperature, air pressure, direction, and speed of wind, and the amount and distribution of rainfall, right? The windward sides, very important. The windward sides of the Western Ghats and Assam receive high rainfall during June to September, right? Whereas the southern plateau remains dry due to its leeward situation along the Western Ghats. सदर्न प्लेटू मतलब हम पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में ही बात कर रहे हैं. तो जब भी विंड आती है लेफ्ट साइड से, वेस्ट साइड से, तो क्या हो जाता है, ड्यू टू ओरोग्राफिक इफेक्ट, है ना, वो विंड्स ऊपर जाती है, रेनफॉल विंडवर्ड साइड पे ही दे देती है, एंड देन ऑल द मॉइस्चर गोज अवे एज एंड व्हेन द विंड्स मूव टुवर्ड्स द ईस्ट, मॉइस्चर इज डन, मॉइस्चर इज फिनिश्ड, एंड लीवर साइड पे क्या हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है. तो वही है, रिलीफ का यही इफेक्ट है मॉनसून पे. नेक्स्ट देखिए, सेकेंड टाइप ऑफ फैक्टर्स हम देखेंगे अभी, फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड. ओके, अभी एयर प्रेशर एंड विंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. देखते हैं यहाँ पे, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन लोकल क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया वी नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स. ओके, फर्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. एयर प्रेशर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, विंड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. फिर उसके बाद आता है, ये हो गया सरफेस पे. उसके बाद आता है अपर एयर सर्कुलेशन कॉज्ड बाय फैक्टर्स कंट्रोलिंग ग्लोबल वेदर एंड द इनफ्लो ऑफ डिफरेंट एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम्स, है ना, डिफरेंट एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम्स. आई थिंक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जोग्राफी में ये चीज़ें हो चुकी हैं, एयर मासेस, जेट स्ट्रीम्स, अपर एयर सर्कुलेशन, सो यू माइट बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स. इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स जनरली नोन एज डिस्टर्बेंसेस या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच कम फ्रॉम वेयर, मेडिटेरेनियन, दे ओरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन ओशन, राइट, वहाँ से आती हैं इंडिया पे ड्यूरिंग द विंटर सीजन. एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशन भी बनता है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड into India, right, creating weather conditions favorable to rainfall. तो ये तीन फैक्टर्स हैं, एक सरफेस पे है, एक अपर एयर सर्कुलेशन है, एंड ये ग्लोबल फैक्टर्स हैं जहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रही है या फिर ट्रॉपिकल डिप्रेशन बन रही है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, तो हम एक के बाद एक देखेंगे अभी. द मैकेनिज्म्स ऑफ दीज फैक्टर्स कैन बी अंडरस्टूड विद रेफरेंस टू विंटर एंड समर सीजन्स ऑफ द ईयर्स सेपरेटली, है ना, सेपरेटली हम एक एक मैकेनिज्म हम पढ़ सकते हैं. तो अभी हम देखेंगे विंटर सीजन में. देखिए, मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द विंटर सीजन. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस प्रेशर एंड विंड्स. तो विंटर सीजन में सरफेस प्रेशर एंड विंड्स में क्या होता है, इन विंटर मंथ्स द वेदर कंडीशंस ओवर इंडिया आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. तो विंटर सीजन में क्या हो रहा है, ये अगर इंडिया है तो यहाँ पे इफेक्ट कहाँ से आ रहा है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया से आ रहा है, जो ऊपर है ना. ऊपर क्या है, हम चाइना है, फिर पूरा सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, वहाँ पे क्या हो रहा है, कोल्डर काइंड ऑफ टेम्परेचर है, वो एकदम टेम्परेट रीजन्स में है. तो वहाँ से विंटर सीजन में इंडिया पे इन्फ्लुएंस आता है. वो कैसे होता है आप देखेंगे. देखिए, a high pressure center in the region lying to the north of the Himalayas develops during winter. Obviously high pressure मतलब क्या है, जहाँ पे कोल्ड एयर डिसेंड हो रही है. कोल्ड एयर जहाँ है, विंटर सीजन है, तो ऑब्वियसली इन द टेम्परेट जोन, दैट इज चाइना का रीजन, रशिया का रीजन, वहाँ पे कोल्ड है, तो वहाँ पे डिसेंडिंग एयर है. डिसेंडिंग एयर के मारे क्या हो रहा है, वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है. तो हाई प्रेशर जो है, हाई प्रेशर center in the region lying to the north of the Himalayas develops during the winter. इससे क्या होता है, this center of high pressure gives rise to the flow of air at the low level from the north towards the Indian subcontinent. तो high pressure से क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर आ रही है, इंडिया पे एयर आती है. ठीक है, साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज मतलब इंडिया पे आ रही है. द सरफेस विंड्स ब्लोइंग आउट ऑफ द हाई प्रेशर सेंटर ओवर सेंट्रल एशिया रीच इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास. मतलब एयर मास की तरह ही वो कोल्ड एयर मास जैसे वो ड्राई है, कॉन्टिनेंट में जनरेट हुआ है, तो उसको हम कॉन्टिनेंटल बोलेंगे. और एयर मास क्या होता है, बड़ा एयर का पार्सल होता है विथ, हमने पढ़ा है पहले भी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जोग्राफी में. तो एयर मास में क्या होता है, यूनिफॉर्म एक
टेम्परेचर होता है उसका, है ना, तो वैसे करके वो इंडिया पे आ रही हैं बिकॉज वहाँ पे सेंट्रल एशिया में हाई प्रेशर है और इक्वेटर पे क्या होता है, या फिर ITCZ अगर नीचे आ गया है ना, इक्वेटर से नीचे आ गया है विंटर में, तो वहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, तो धीरे धीरे वहाँ से एयर क्या है सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आ रही है इन द फॉर्म ऑफ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास. दीज कॉन्टिनेंटल विंड्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ट्रेड विंड्स. हमें पता है ट्रेड विंड्स ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ट्रेड विंड्स पता है हमें डायरेक्शन क्या होती है ना. फिर they come in the contact. The position of this contact zone is not however stable. तो ये जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट जोन बन रहा है वो पोजीशन स्टेबल नहीं है, कहीं पर भी बन सकती है जैसे ही एक दूसरे से मीट कर ले वो. ओकेजनली इट में शिफ्ट इट्स पोजीशन एज फार एज ईस्ट एज फार ईस्ट एज द मिडिल गंगा वैली. तो कभी कभार वो हिमालय तक ही सीमित नहीं है, वो और नीचे आ सकती है, गंगा वैली तक भी उनका मीटअप हो सकता है. ठीक है, Ganga Valley with the result that the whole of the northwest and northern India up to the middle Ganga Valley comes under the influence of dry northwestern winds. अगर dry winds हैं तो rainfall होगा क्या? बिल्कुल नहीं, है ना. तो क्या हो जाता है, पूरा अपर इंडिया जो नॉर्थ है और गंगा वैली, मिडल ऑफ गंगा वैली तक, यूपी तक क्या हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है ना, ड्राई हो जाता है वहाँ का वातावरण. नेक्स्ट देखते हैं, तो ये था क्या, सरफेस प्रेशर एंड विंड्स. हमने प्रेशर देख लिया है, विंड्स कैसे ब्लो कर रही है, ट्रेड विंड से उनकी मुलाकात हो रही है ना, साइबेरियन विंड्स जो आ रही हैं वो देख लिया, कहाँ तक एक्सटेंड होता है, गंगा वैली तक एक्सटेंड होता है, ये भी हमने देख लिया. तो रिमेंबर दीज थिंग्स. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्टर क्या है यहाँ पे, जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. ये कॉन्सेप्ट थोड़ी डिफिकल्ट है, इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो, ताकि फास्ट हमारा रिविजन हो जाए, है ना. The pattern of air circulation discussed above is witnessed only at the lower level, मतलब surface level of the atmosphere near the surface of the earth. Okay, अभी हम देखेंगे upper air circulation, right? Higher up in the lower troposphere. Troposphere की लेंथ ये क्या होती है हमारी हाइट, ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर होती है ना एवरेज, इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, पोल पे कम होती है. तो हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फियर अबाउट 3 किलोमीटर्स अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ a different pattern of air circulation is observed. ठीक है, the variations in the atmospheric pressure closer to the surface of the earth have no role to play in the making of the upper air circulation. तो ये क्या कह रहा है, सरफेस पे जो सर्कुलेशन हो रहा है और अपर या फिर लोअर ट्रोपोस्फियर पे जो सर्कुलेशन हो रहा है उनमें कोई संबंध नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली बनती है, राइट. अभी देखिए, ऑल ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ 9 to 13 किलोमीटर्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं हम, वेस्टर्ली बोल रहे हैं. वो ब्लो करती है वेस्ट साइड से, इसीलिए तो वेस्टर्ली है. तो पूरा वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया इसके इन्फ्लुएंस के अंडर होता है. एल्टीट्यूड क्या दिया है यहाँ पे, 9 to 13 किलोमीटर्स. ओके, नेक्स्ट देखिए, दीज विंड्स ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयस. नॉर्थ ऑफ द हिमालयस तो ऑलमोस्ट 20 के ऊपर से जा रही है ये, है ना, रफली पैरेलल टू द टिबेटन हाईलैंड्स, है ना. तो वेस्टर्ली विंड्स यहाँ टिबेटन हाईलैंड्स पे क्या हो रही है, ब्लो हो रही है. दीज आर नोन एज जेट स्ट्रीम्स. ओके, तो अब जेट स्ट्रीम क्या है, आर दे फाउंड ऑन द सरफेस, यूपीएससी पूछ लेगी. जेट स्ट्रीम्स ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन. बिल्कुल नहीं, आधा स्टेटमेंट करेक्ट है, वेस्ट टू ईस्ट ब्लो कर रही हैं, ठीक है, पर आर दे सरफेस फिनोमिनन, बिल्कुल नहीं, दे आर फाउंड इन द अपर एयर सर्कुलेशन. ठीक है, अभी देखिए, द टिबेटन हाईलैंड्स एक्ट एज बैरियर इन द पाथ ऑफ दिस जेट स्ट्रीम. बैरियर बन रही हैं टिबेटन हाईलैंड्स, है ना. एज अ रिजल्ट जेट स्ट्रीम्स गेट बाइफरकेटेड. यहाँ पे क्या हो रही है, बाइफरकेट हो रही है. वन ऑफ इट्स ब्रांचेस ब्लोज टू द नॉर्थ ऑफ द टिबेटन हाईलैंड्स वाइल द सदर्न ब्रांच, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सदर्न ब्रांच ब्लोज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन साउथ ऑफ द हिमालयाज. तो थैंकफुली क्या हो रहा है, वहाँ पे हाईलैंड्स है और वहाँ पे जेट स्ट्रीम क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, और जो सदर्न ब्रांच है वो हिमालयस की तरफ आ रही है. इट हैज़ इट्स मीन पोजीशन एट 25 डिग्री नॉर्थ. तो मैंने बोला था ना ऑलमोस्ट 20 के ऊपर होगी, तो 25 डिग्री नॉर्थ इन फेब्रुवरी में, यानी कि विंटर मंथ है, एट 200 to 300 MB लेवल. ठीक है, मिलीबार है.
प्रेशर के बारे में बात हो रही है. इट इज़ बिलीव दैट दिस सदर्न ब्रांच ऑफ द जेट स्ट्रीम एक्सरसाइजेज एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द विंटर वेदर इन इंडिया. तो वो क्या है देखेंगे हम. अभी देखिए ये क्या दिया है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स इन इंडिया इन विंटर एट द हाइट ऑफ 9 to 13 किलोमीटर्स. तो ये सरफेस पे नहीं हो रही है, ये जो डायग्राम में दिया है ये 9 to 13 किलोमीटर्स पे आ रही है. देखिए ऐसे वेस्टर्न जेट स्ट्रीम आ रही है. ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एकदम अच्छे से नहीं दिया है, एनिमेटेड भी नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे समझ लीजिए आप टिबेट वगैरह है यहाँ पे ऑलमोस्ट. ठीक है तो क्या हो रहा है कि ऐसे आ रही थी वो विंड, यहाँ पे बाइफरकेट होके नॉर्थ वाली ऊपर चली गई और ये साउथ वाली जो है इंडिया पे आ रही है. देखिए साउथ ऑफ हिमालयस शिवालिक्स है उसके साउथ साइड से आ रही हैं. राइट अभी आगे देखेंगे. वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. एक मिनट, यहाँ पे जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर वगैरह है ना, ये शायद आगे कवर होगा इस एनसीईआरटी में, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फैक्टर ही दे दिया है उन्होंने. ठीक है तो ये हम देखेंगे डिटेल में बाद में. यस नेक्स्ट देखिए, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इनका भी तो इन्फ्लुएंस होता है. तो देखिए द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस विच एंटर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेस्ट, है ना, एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी. ठीक है तो जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं उनका ओरिजिन ही मेडिटेरेनियन सी पे हो रहा है एंड आर ब्रॉट इनटू इंडिया बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. देखो मैं बोल रही थी कि बाद में आएगा पर अभी आ गया उसका इम्पोर्टेंस. तो जेट स्ट्रीम वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम आ रही थी ऊपर से वो क्या कर रही है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस को भी साथ में ही लेके आ रही है. वो बहुत फास्ट ब्लो होती है और साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस को भी ला रही है. एन इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर जनरली इंडिकेट्स एन एडवांस इन द अराइवल ऑफ दीज साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. अराइवल या फिर आप हेराल्ड भी शब्द यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है तो अगर नाइट के टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है. ठीक है तो इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर अगर हो गया है इस एरिया में, तो उससे हम क्या समझ लेंगे कि बाबा वेस्टर्न साइक्लोन आ रहा है अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ओके नेक्स्ट देखिए, ये हो गया वेस्टर्न साइक्लोन. अभी नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन. ओके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन. तो एक तो बे ऑफ बंगाल में बन रहा है और इंडियन ओशन में बन रहा है. दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव वेरी हाई विंड वेलोसिटी. हमने पढ़ा है पहले भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, है ना, दूसरे एनसीईआरटी में. वेरी हाई विंड वेलोसिटी एंड हैवी रेनफॉल होता है. हैवी रेनफॉल कहाँ होता है, आई में होता है क्या, आई ऑफ द साइक्लोन में? बिल्कुल नहीं. आई ऑफ द साइक्लोन क्या होता है, काम रीजन होता है. जो आई वॉल होती है या फिर रेन बैंड्स बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, वहाँ पे रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल. एंड हिट तमिलनाडु को हिट कर देता है, लैंडफॉल हो जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा कोस्ट. ओके ओडिशा कोस्ट. Most of these cyclones are very destructive due to high wind velocity and torrential rain that accompanies it. Right? Have you seen their movement in the weather report in the television? हमारे यहाँ पे वेदर रिपोर्ट बहुत नॉर्मली दिखाई जाती है ना. समटाइम्स इन द यूएस के अगर आप देखेंगे वेदर रिपोर्टिंग जो चैनल्स होते हैं वो लोग बहुत अच्छे से दिखाते हैं. दे आर वेरी नाइस एनिमेटिव वीडियोस. ओके नेक्स्ट देखिए. हाँ तो यही था, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बारिश लाते हैं और वेस्टर्न जो साइक्लोन्स आते हैं वो भी यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर को, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है. अभी समर सीजन में जाएंगे हम. ओके आई यूज़ रेड कलर फॉर समर. बहुत गर्मी होती है राइट. अभी मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द समर सीजन. इससे पहले मैं एक विंटर को एक बार रिवाइज कर लेती हूँ. ठीक है विंटर सीजन में हमने क्या देखा, सरफेस प्रेशर एंड विंड्स देखा. वहाँ पे हमने देखा कि जो सेंट्रल एशिया से है वहाँ से कोल्ड एयर आ रही थी. उसके बाद हमने देखा जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन. एक बार सरफेस देख लिया, एक बार अपर एयर सर्कुलेशन हमने देख लिया पूरा का पूरा, है ना. उसके बाद हमने देखा कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आ रही थी एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी यहाँ पे क्या हो रहा था,
वेदर या फिर क्लाइमेट इन्फ्लुएंस हो रहा था। अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ वेदर इन द समर सीजन। ठीक है, तो समर सीजन में क्या चीज़ें हो रही हैं। अब फिर से सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। अभी समर सीजन में क्या हो रहा है सरफेस पे, देखिए एज द समर सेट्स इन एंड द सन शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड, तो सन का क्या हो रहा है, उत्तरायण हो रहा है। द विंड सर्कुलेशन ओवर द सब कॉन्टिनेंट अंडरगोज अ कंप्लीट रिवर्सल। हमने देखा, देखो तो जो विंड सर्कुलेशन है इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। हम एपरेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सन रियली मूव नहीं होता है, अर्थ ही मूव होता है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस वी से कि सन इज मूविंग। ओके, तो जो रिवर्सल ऑफ विंड्स है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स है, इट इज डिपेंडेंट ऑन सन हेवीली, राइट, apparent movement of the sun। तो देखिए द विंड सर्कुलेशन ओवर द सब कॉन्टिनेंट अंडरगोज अ कंप्लीट रिवर्सल एंड बोथ द लोअर एज वेल एज द अपर लेवल्स। ऑब्वियसली हमने देखा सरफेस पे भी चेंज होता है, जेट स्ट्रीम में भी चेंज होता है। बाय द मिडल ऑफ जुलाई द लो प्रेशर बेल्ट नियर द सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड है ना, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन के साथ नॉर्थ में शिफ्ट हो रहा है, रफली पैरेलल टू द हिमालयाज बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री नॉर्थ, है ना। तो हिमालयस पे ऑलमोस्ट वो आ जाता है ITCZ, हिमालयस स्पेशली तिब्बत पे आप याद रखिए, ठीक है। बाय दिस टाइम द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम विड्रॉज फ्रॉम द इंडियन रीजन। ऑब्वियसली क्योंकि वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम थी वो विंटर है इसीलिए तो नीचे आई थी। जैसे ही सन ऊपर आया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी रशिया के आसपास, चाइना के आसपास, है ना, तो इंडिया पे नहीं आएगी वो। इन फैक्ट meteorologists have found an interrelationship between the northward shift of the equatorial trough यानी कि ITCZ and the withdrawal of westerly jet stream from over the northern Indian plain। ठीक है, it is generally believed that there is a cause and effect relationship between the two। देखो there is a cause and effect relationship between the two। the ITCZ being a zone of low pressure attracts inflow of winds from different directions। हमने ये पढ़ा है ना, लो प्रेशर पे क्या हो जाता है, विंड्स हाई प्रेशर से आती है और वो कन्वर्ज हो जाती है और मतलब कन्वेक्टिव उस कन्वेक्शन होता है उसका और ऊपर चली जाती है ना, तो ये पता है हमें, अट्रैक्ट्स इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। द मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, ये देखिए मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास मतलब क्या हो जाता है, मैरीटाइम मतलब ओशन, ओशन का इन्फ्लुएंस है, और ट्रॉपिक्स मतलब हमें पता है ट्रॉपिकल एरियाज में ऑलमोस्ट नियर एंड अबव द इक्वेटर, है ना, अबव एंड बिलो ऑल्सो, है ना। तो वहाँ का अगर एयर मास है यानी कि ओरिजिनेटिंग ऑन द ओशन, ट्रॉपिकल ओशन फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर रशेस टू द लो प्रेशर एरिया इन द जनरल साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। तो क्या हो रहा है, मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे, आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस। ओके, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, तो समझो ये लाइन एक्सप्लेन करने के लिए, अगर मैरीटाइम ट्रॉपिकल है तो यहाँ पे ओशन पे एक मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास है, वो अभी क्या हो रही है, सदर्न हेमिस्फीयर से क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है इक्वेटर को एंड इट इज़ रशिंग टू द लो प्रेशर एरिया इन द जनरल साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। तो वो ऐसे आके ऐसे बेंड हो रही है, तो this becomes southwest। I know this is a bad diagram but I hope you understand। तो क्या हो रही है, जनरली साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन से नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ रही है। इट इज़ दिस मॉइस्ट एयर करंट विच इज़ पॉपुलरली नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून। तो यही है हमारी साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे हम, जेट स्ट्रीम्स एंड अपर एयर सर्कुलेशन। अभी वो कैसे चेंज होता है समर सीजन में। द पैटर्न ऑफ प्रेशर एंड विंड्स एज मेंशन्ड अबव इज फॉर्म्ड ओनली एट द लेवल ऑफ ट्रोपोस्फियर, है ना, ट्रोपोस्फियर में। एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अभी देखो हमने विंटर में क्या देखा था, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ रही है, तो उसी की ऑपोजिट क्या है, एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी आती है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लोज ओवर द southern part of the peninsula in June and has a maximum speed of 90 kilometers per hour। ठीक है, तो इसका हमें फिगर भी है 4.3 दिया है, यस दिस वन ओनली। ओके, तो ये देखिए ईस्ट से आ रही है,
और ये पेनिनसुला पे आ रही है मोस्टली, ये वाली पूरी। तो दिस इज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ओके, इन ऑगस्ट it is confined to 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड इन सितंबर अप टू 22 जो है डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो ये क्या बोल रही है, अगस्त में ऑलमोस्ट 15 यहाँ पे ये लिमिटेड है, और जैसे ही सितंबर बढ़ता है तो ये और ऊपर शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक आ जाती है। द ईस्टर्लीज नॉर्मली डू नॉट एक्सटेंड टू द नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन द अपर एटमॉस्फेयर। हो गया स्टेटमेंट, यूपीएससी का स्टेटमेंट हो गया। क्या पता ये उठा के पूछ ले, है ना। द ईस्टर्लीज नॉर्मली डू नॉट एक्सटेंड टू द नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इन द अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये ईस्टर्ली यही तक सीमित है उसका रेंज। ऑलराइट, नेक्स्ट देखेंगे आई थिंक 1 मिनट 4.2। यस, हम देखेंगे समर मॉनसून विंड्स। ठीक है, ये सरफेस सर्कुलेशन है। अभी हमने पढ़ा था अपर एयर सर्कुलेशन, बट विल गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, सरफेस। यस, तो ये सरफेस पे चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो ये देखो सन क्या हो गया है, अभी अपेरेंट मूवमेंट नॉर्थ में आ गया है समर में। समर का ही दिया है, राइट, समर मॉनसून विंड्स। लेट मी जस्ट, या तो ये नॉर्थ में समझो सन नॉर्थ में आ गया है। ओके, तो क्या हो रहा है, ये साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, मैरीटाइम। देखो ये यहाँ पे मैरीटाइम जो हमारा एयर मास था वो यहाँ पे हाई प्रेशर हो रहा है, और वो क्या होता है, वो वहाँ से लो प्रेशर यहाँ पे अगर ITCZ शिफ्ट हो गया है तिब्बत या फिर इंडिया के नॉर्थ में हिमालय में, अगर ITCZ जो है यहाँ पे आ गई है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो रहा है, तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर से विंड्स हैव टू ब्लो टूवर्ड्स लो प्रेशर, है ना। तो ये जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास है साउथ हेमिस्फीयर में, ये क्या करता है, अपना नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जर्नी हम अपना स्टार्ट करता है, और यहाँ से ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाता है, इट बेंड्स लाइक दिस टूवर्ड्स द राइट। ओके, ये साउथ से नॉर्थ आ रहा है तो विंड का हेड नॉर्थवर्ड्स है, तो ऑब्वियसली उसका राइट साइड क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा जो हमें दिखता है। अगर इट वॉज एमर्जिंग ओवर हियर और अगर वो साउथ में आता तो उसका राइट साइड कौन सा होता, हमारा लेफ्ट बन जाता। ठीक है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये अब ऐसे आके क्या हो रहा है, एज अ साउथ वेस्ट मानसून वो इंडिया पे ब्लो कर रहा है, यहाँ से आके यहाँ पे। ठीक है, तो इतना ही है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर हाई प्रेशर बन रहा है तो वहाँ से भी देखो राइट साइड पे जा रहा है ना, राइट साइड पे जा रहा है। तो वो चाइना, जापान तक ज़्यादा सीमित नहीं है शायद, यहाँ तक रेनफॉल देगा वो, चाइना के पार्ट पे भी रेनफॉल देगा। ठीक है, तो दिस इज़ डन। हाँ, ITCZ के बारे में कुछ चीज़ें दी हैं यहाँ पे, बॉक्सेस NCERT के फेवरेट हैं तो पढ़ लेते हैं हम अच्छे से। ठीक है, द ITCZ इज़ अ लो प्रेशर जोन, हमें ये चीज़ पता है, लोकेटेड एट द इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स कॉन्वर्ज, जहाँ पे ट्रेड विंड्स कॉन्वर्ज होती हैं, एंड सो इट इज़ अ जोन वेयर एयर टेंड्स टू एसेंड। ऑब्वियसली जहाँ पे कॉन्वर्ज होगी तो कहीं ना कहीं तो बाहर जाना पड़ेगा ना विंड्स को, तो वो ऊपर चली जाती है फिर एसेंट। इन जुलाई द ITCZ इज लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स ओवर क्या है, गैंगेटिक प्लेन है ना। समटाइम्स कॉल्ड द मानसून ट्रफ, इसको हम मानसून ट्रफ भी कहेंगे। जब ITCZ क्या हो जाता है, गैंगेटिक प्लेन पे आ जाता है तो वहाँ पे बारिश होती है, बारिश उसी फिनोमिनन से बारिश होती है, इसीलिए ITCZ को ही हम तब मानसून ट्रफ बोलते हैं। दिस मानसून ट्रफ एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ थर्मल लो ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, है ना। ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ ITCZ द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर क्रॉस द इक्वेटर, देखा यही बोला हमने, क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स, है ना, एंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यही हमारा डायरेक्शन है। ऊपर के डायग्राम में भी देखा हमने, ड्यू टू मैंने बोला ना कोरियोलिस फोर्स, है ना, इट बिकम्स साउथ वेस्ट मानसून। उसको हालांकि आना था ऐसे स्ट्रेट ही, पर आ गई कोरियोलिस फोर्स, उसको कर दिया बेंड, तो आना था साउथ टू नॉर्थ, पर वो बन गया क्या, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। इन विंटर द ITCZ मूव्स साउथवर्ड्स, करेक्ट, ड्यू टू व्हाट, apparent movement of sun, and so the reversal of winds from
नॉर्थ ईस्ट टू साउथ, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ बन रहा है, एंड साउथ वेस्ट टेक्स प्लेस, सो दे आर कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। हम फिगर में ही अभी देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया समर सीजन में, ठीक है। अभी वो बॉक्स में क्या कह रहा था कि अगर विंटर सीजन में ITCZ समझो यहाँ पे नीचे आ गया है, एक मिनट, इक्वेटर ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, तो यस समझो यहाँ पे आ गया है ITCZ, तो यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं, यहाँ पे सब लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पे पूरा हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक आएंगी विंड्स, ऐसे आके ऐसे, ठीक है, ऐसे आके ऐसे ब्लो करने लगेंगी। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट आने लगेंगी, फिर ऐसी ऐसी विंड्स ब्लो करेंगे। ओके, दैट इज व्हाट इज गिवन इन वन लाइन इन दैट बॉक्स। ओके, ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड दैट। अभी देखते हैं, यस द और एक फैक्टर था ना समर सीजन में, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमने इस डायग्राम में देख ली है, ऐसे ईस्ट से ब्लो कर रही है समर सीजन में, ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बन रहे हैं अगेन। द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टीयर्स द ट्रॉपिकल डिप्रेशंस इनटू इंडिया, है ना। स्टीयर मतलब क्या, उसको एक एज अ कैटलिस्ट वो काम कर रही है ना। तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टीयर्स द ट्रॉपिकल डिप्रेशंस इनटू इंडिया। These depressions play a significant role in the distribution of monsoon rainfall over the Indian subcontinent. Done. The tracks of these depressions are the areas of highest rainfall in India. देखो, the frequency at which these depressions visit India, their direction and intensity all go a long way in determining the rainfall pattern during the southwest जो है monsoon period. Okay. डन। तो समर सीजन और विंटर सीजन के हमने फैक्टर्स देख लिए। अभी हम बढ़ते हैं नेचर ऑफ द इंडियन मानसून पे, ठीक है। तो इंडियन मानसून कैसा है उसको जानना भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो नेचर ऑफ द इंडियन मानसून देखिए, मानसून इज अ फेमिलियर दो अ लिटिल नोन क्लाइमेटिक फिनोमिनन। फेमिलियर है, सबको पता है बारिश होती है बाबा, पर उसके बारे में हमें कितनी नॉलेज है ना। Despite the observations spread over centuries, the monsoon continues to puzzle the scientists. Many attempts have been made to discover the exact nature and causation of monsoon, but so far no single theory has been able to explain the monsoon fully. A real breakthrough has come recently when it was studied at the global rather than at regional level. तो जब ग्लोबल लेवल पे पढ़ाई की गई, स्टडी की गई, तब पता चला। Systematic studies of the causes of rainfall in the South Asian region help to understand the causes and salient features of the monsoon, particularly some of its important aspects, such as the onset of the monsoon, उसके बाद the rain bearing systems, example tropical cyclones, and the relationship between their frequency and distribution of monsoon rainfall, and finally break in the monsoon. break भी होता है, तो onset है, फिर rain bearing system and उनका relationship है with their frequency and distribution, and then the break in the monsoon. तो अभी हम देखेंगे onset of the monsoon, ठीक है। onset क्या होता है बाबा, देखिए, towards the end of the 19th century it was believed that the differential heating of the land and sea during the summer months is the mechanism which gets the stage for the monsoon winds to drift towards the subcontinent. तो पहले क्या होता था, बस लैंड और सी के डिफरेंसेस के बेसिस पे मॉनसून आती है ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता था, बट इट इज़ नॉट इनफ टू ड्रैग सो मच ऑफ मॉइस्चर, सो मच ऑफ एयर, इट्स एक्चुअली अ विंड सिस्टम, सो दैट्स नॉट इनफ, राइट। देखिए, ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे when the sun shines vertically over the Tropic of Cancer, the large landmass in the north of Indian Ocean gets intensively heated, correct? जब यहाँ सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो क्या होता है, लार्ज जो लैंड मास है पूरा का पूरा एशिया में, है ना, इन द नॉर्थ ऑफ द इंडियन ओशन गेट्स इंटेंसली हीटेड. दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेंस लो. क्या बन रहा है, इंटेंस लो प्रेशर इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. सिंस द प्रेशर इन द इंडियन ओशन in the south of the landmass is high,
मतलब लैंड मास के साउथ में इंडियन ओशन में प्रेशर हाई बन गया है और नॉर्थ पार्ट में लो बन गया है. ओके, इज हाई एज वाटर गेट्स heated slowly, obviously because of specific जो heat है. The low pressure cell attracts the southeast trades across the equator. तो क्या कर रहा है, लो प्रेशर जो नॉर्थ में बना था वो अट्रैक्ट कर रहा है साउथ ईस्ट ऐसे जो ट्रेड विंड्स बह रहते हैं साउथ में, उनको इक्वेटर से खींच के ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता है. ओके, सो दीज कंडीशंस हेल्प इन द नॉर्थवर्ड शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द ITCZ. ऑब्वियसली क्योंकि अगर ऊपर लो बन रहा है तो ITCZ तो ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगा, है ना. अभी देखिए, द साउथ वेस्ट मानसून मे thus be seen as a continuation of the साउथ ईस्ट ट्रेड्स. तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे हमें, ठीक है. वेन एवर इन द साइंटिफिक वर्ल्ड दीज थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. द साउथ वेस्ट मानसून रिलेशनशिप ही बना दिया उन्होंने, है ना. मे thus be seen as the continuation of the साउथ ईस्ट ट्रेड्स डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर. तो वो साउथ हेमिस्फीयर में ब्लो हो रही थी आराम से साउथ ईस्ट जो ट्रेड्स हैं, पर ड्यू टू लो प्रेशर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो जहाँ पे समझो तिब्बत में लो प्रेशर हो रहा है, तो नीचे से सदर्न हेमिस्फीयर से विंड्स ऊपर ब्लो हो रही हैं, तो इतना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर वहाँ पे बन चुका है. ओके, सो दीज विंड्स क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री ईस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स. वो उन्हीं लॉन्जिट्यूड्स में क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है इक्वेटर, और फिर क्या कर रही है, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ रही है. द शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द ITCZ इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फिनोमिनन ऑफ द विड्रॉवल ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ये हमने ऊपर ही पढ़ा है. फ्रॉम इट्स पोजिशन ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स साउथ ऑफ हिमालयस. तो जो वेस्टर्ली जेट आ रही थी वो नीचे से क्या हो रही है, ऊपर शिफ्ट हो जा रही है समर सीजन में. द ईस्टर्ली जेट सेट्स इन अलॉन्ग 15 डिग्री लैटिट्यूड. ये भी हमने पढ़ा ऊपर ही, है ना. ईस्टर्ली जेट भी आ रही थी, पेनिनसुला पे आ रही थी, है ना. सेट्स अलॉन्ग इन 15 डिग्री लैटिट्यूड ओनली आफ्टर द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम हैज़ विड्रॉन इटसेल्फ. तो जब वेस्टर्न जो जेट स्ट्रीम आ रही थी हमारे हिमालयाज के साउथ में गैंगेटिक वैली में जो आ रही थी, वो जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तभी आके ईस्ट से हमारी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो करेगी, ठीक है. दिस ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ द मानसून इन इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लेंगे. तो ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है वो रिस्पॉन्सिबल है बर्स्ट ऑफ द मानसून इन इंडिया. उसके बाद एंट्री ऑफ मानसून इनटू इंडिया देखेंगे. द साउथ वेस्ट मानसून्स सेट इन ओवर द केरला कोस्ट बाय 1 जून एंड मूव्स स्विफ्टली टू रीच मुंबई एंड कोलकाता बिटवीन 10th एंड 13th जून. ठीक है, तो 1 जून में केरला में आती है बारिश. ओके, एंड देन मुंबई कोलकाता में 10th एंड 13th जून को. बाय मिड जुलाई साउथ वेस्ट मानसून क्या कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है द एंटायर सब कॉन्टिनेंट. लेट मी सी, फिगर 4.5 बोल रहे हैं. या यस वेरी नाइसली गिवन. ये देखिए 1 जून ये केरला में आ रही है, 5 जून को ऑलमोस्ट कर्नाटक आंध्र प्रदेश में जा रही है, मुंबई में 10th जून को आ रही है. देखिए कोलकाता में ऑलमोस्ट 5th जून को है. 1 जून यहाँ नॉर्थ ईस्ट में आ रही है ना, त्रिपुरा एंड रीजन्स. उसके बाद 15th जून में यहाँ पे मिडल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है. फिर जुलाई में एक्सटेंड हो रही है राजस्थान में. 15th जुलाई में यहाँ पे राजस्थान में ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो रही है. ठीक है, तो दिल्ली में इट्स बिटवीन 15 जून एंड 1 जुलाई. ओके, तो ऐसे ये नॉर्मल डेट्स है ऑफ द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, या let me just check. ओके, तो ये हो गया था ऑनसेट हो गया. अभी नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, रेन बेरिंग सिस्टम्स एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. Rain bearing systems and rainfall distribution. There seem to be two rain bearing systems in India. First originate in the Bay of Bengal, causing rainfall over the plains of North India. ठीक है, and फिर second आती है Arabian Sea, is the Arabian Sea current of the
साउथ वेस्ट मानसून विच ब्रिंग्स रेन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक तो बे ऑफ बंगाल से आ रही है ब्रांच और फिर अरेबियन सी हमने देखा है। वही यहाँ पे जो हमने पढ़ा ना, साउथ ईस्ट स्टेट्स ऐसे आती है इक्वेटर को क्रॉस करके, तो वो क्या हो जाती है, लैंड को टच करके बाइफरकेट हो रही है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड एक अरेबियन सी। तो ऐसे दो सिस्टम्स हैं। ठीक है, मच ऑफ द रेनफॉल अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स इज ओरोग्राफिक, ये भी हमें पता है, हमने पहले की एनसीईआरटीज में पढ़ा है ना। तो वेस्टर्न घाट्स पे क्या हो रही है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। एज द मॉइस्ट एयर इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड फोर्स टू राइज अलॉन्ग द घाट्स, है ना। द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाउएवर रिलेटेड टू टू फैक्टर्स। क्या है, इंटेंसिटी पे भी टू फैक्टर्स है, द ऑफशोर मीटियोरोलॉजिकल कंडीशंस एंड देन द पोजीशन ऑफ द इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो ये दो कंडीशंस हैं। इंटेंसिटी मतलब कितनी ज़्यादा बारिश या कम होगी बारिश वहाँ पे, वो किस पे डिपेंडेंट है, एक तो ऑफशोर मीटियोरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं और फिर क्या होती है, पोजीशन ऑफ इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम, हाँ, अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका में भी होता है, वो थोड़ा सा और दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो या ये देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। देयर पाथ्स ओवर इंडिया आर मेनली डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ ITCZ, which is generally termed as the monsoon trough. As the axis of the monsoon monsoon trough oscillates, there are fluctuations in the track and direction of these depressions. Yes, and the intensity and the amount of rainfall vary from year to year. The rain which comes in spells displays a declining trend. जब स्पेल होती है मतलब स्कैंटी रेनफॉल आ रही है तो वो डिस्प्ले करती है डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ओवर द वेस्ट कोस्ट एंड फ्रॉम साउथ ईस्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे डिक्लाइनिंग ट्रेंड वो दिखाती है ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। ठीक है, इसके बाद हाँ, हम ये पढ़ेंगे ब्रेक इन द मॉनसून एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक ओके फ्रॉम दिस लेक्चर। ये देखिए, यहाँ क्या आ रही है, द थर्ड जो हमने प्रोसेस देखा था, ब्रेक इन द मॉनसून, राइट। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर अ फ्यू डेज, इफ रेन फेल्स टू ऑकर फॉर 1 or more weeks, it is known as the break in the monsoon. Done, इतना याद कर लेना है। These dry spells are quite common during the rainy season. Dry spell rainy season में ही हो सकता है। These breaks in the different regions are due to different reasons. In northern India, rains are likely to fail if the rain-bearing storms are not very frequent along the monsoon trough और जो है ITCZ। ठीक है, ये नॉर्दर्न इंडिया का हो गया। ओवर द वेस्ट कोस्ट पे क्या होता है, द ड्राई स्पेल्स आर एसोसिएटेड विथ डेज व्हेन विंड्स ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट। अगर यही हमारा वेस्ट कोस्ट है और विंड भी ऐसी ही जा रही है, वो लैंड पे आ ही नहीं रही है, तो कैसे होगा ना, जब वो ऐसे आएगी तभी तो ओरोग्राफिक लिफ्ट होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है, तो उसकी वजह से ड्राई हो जाता है, ड्राई मतलब ब्रेक इन द मॉनसून हो जाता है। ठीक है, यस, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। ये एक बॉक्स हम कर लेते हैं, एल नीनो ये छूट जाएगा नहीं तो। ठीक है, ये इतना करके वी विल स्टॉप दिस लेक्चर। ओके, देखिए, एल नीनो एंड द इंडियन मॉनसून, दिस इज द लास्ट थिंग वी आर डूइंग। एल नीनो is a concept. देखिए, एल नीनो is a complex weather system that appears once every 3 to 7 years, bringing drought, floods and other weather extremes to different parts of the world. Okay, तो एल नीनो क्या ला सकता है, ड्रॉट भी ला सकता है, फ्लड भी ला सकता है। Okay, the system involves oceanic and atmospheric phenomena with the appearance of warm currents off the coast of Peru in eastern Pacific. Okay, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वार्म करंट आ रही है, वार्म ओशन करंट्स आ रही है पेरू के कोस्ट पे एंड अफेक्ट्स वेदर इन मैनी प्लेसेस इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया पे भी उसका इफेक्ट होता है।
साउथ अमेरिका में चीज़ें चल रही हैं पर उसका इंडियन मानसून पे भी इफेक्ट होता है। एल नीनो इज merely an extension of the warm equatorial current which gets replaced temporarily by cold Peruvian current और उसको हमबोल्ट करंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो रिप्लेस हो जाता है, वार्म करंट कोल्ड करंट से रिप्लेस हो जाता है। This current increases the temperature of water on the Peruvian coast by 10 degree Celsius. तो इससे क्या होता है? It results in the distortion of equatorial monsoon circulation, उसके बाद irregularities in the evaporation of sea and reduction in the amount of planktons which further reduce the number of fish in the sea, है ना। तो जो पेरू के लोग हैं साउथ अमेरिका के, उनकी इकोनॉमी ही यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है। द वर्ड एल नीनो मीन्स चाइल्ड क्राइस्ट मतलब जीसस, ठीक है, बिकॉज दिस करंट अपीयर्स अराउंड क्रिसमस इन डिसम्बर इज अ समर मंथ इन पेरू। ओके, हमारे यहाँ पे ठंडी होती है, पेरू पे क्या होती है? वार्म कंडीशंस होती है ना, समर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। एल नीनो इज यूज्ड इन इंडिया फॉर फोरकास्टिंग लॉन्ग रेंज मानसून रेनफॉल। ओके, लॉन्ग रेंज मानसून रेनफॉल इन 1990 to 91 there was a wild El Nino event and the onset of southwest monsoon was delayed। ठीक है, delayed हो गया था ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रेंजिंग फ्रॉम 5 to 12 days। सो दैट वाज अ ह्यूज क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है। तो एल नीनो हमें पता है, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड many pages over here। okay, the rest of the things we will take in the next video। okay, thank you for continuing till here and take care, bye bye।